احسان نگر کا بادشاہ اپنی ملکہ اور 7 بیٹیوں کے ساتھ محل میں رہتا تھا۔ وہ بہت ہی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ محل میں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ بادشاہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کے نوکر چاکر اور محل میں کام کرنے والے سپاہی بادشاہ سے بہت خوش تھے۔ ملکہ اور بادشاہ دونوں ہی نیک دل انسان تھے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ ملکہ رانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ملکہ رانی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں حضور کیا ہوا ہے، دن بدن طبیعت خراب ہی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کسی طبیب کو بلا کر مجھے دکھا دیجئے، ہو سکتا ہے میری بیماری کا کوئی علاج مل جائے۔ ہاں، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں آج ہی سارے راجیہ میں اعلان کرواتا ہوں۔ اور پھر بادشاہ نے اعلان کروایا کہ ساری طبیبوں کو جمع کیا جائے۔ جو بھی میری ملکہ رانی کا علاج کرے گا میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ مجھے ہر حال میں ملکہ رانی کا علاج چاہیے۔ سارے راجیہ میں اعلان کر دو۔ سارے راجیہ میں یہ خبر پھیل گئی اور طرح طرح کے طبیب جمع ہو گئے۔ بادشاہ سلامت، میں ملکہ رانی کا علاج کر سکتا ہوں۔ خدا نے چاہا تو وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اگر تم نے ملکہ رانی کا علاج کر دیا تو تمہیں وعدے کے مطابق منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ جی بادشاہ سلامت، جو حکم آپ کا۔ طبیب کو ملکہ کے کمرے میں لے جایا گیا اور اس نے علاج شروع کیا، لیکن ملکہ رانی کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہوئی۔ اسی طرح آئے دن کوئی نہ کوئی طبیب آتا اور ملکہ رانی کا علاج کرتا۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے اور مجھے اپنی بیٹیوں کی بہت فکر ہے۔ میرے بعد میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ نہیں، اب ایسا مت سوچیں۔ دیکھنا اب بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے نہیں لگتا میں زیادہ دیر زندہ رہوں گی۔ مجھے صرف اپنی بیٹیوں کی پریشانی کھائی جا رہی ہے، اسی وجہ سے میں لگتا ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ آپ پریشان مت ہوں، دیکھیے گا آپ ایک دن ضرور ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگلی صبح جب بادشاہ سلامت ملکہ رانی کے کمرے میں آئے تو انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ملکہ رانی اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ ملکہ رانی کے اس دنیا سے جانے کے بعد بادشاہ بہت دکھی رہنے لگا۔ ساتوں رانیاں بھی بہت زیادہ دکھی رہنے لگی، اپنی ماں کو بہت یاد کرتی اور روتی رہتی۔ بادشاہ سلامت اب اپنا زیادہ تر وقت خاموش رہ کر گزارنے لگے۔ دربار میں لوگ آتے اور چلے جاتے، لیکن بادشاہ کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ ایک دن منتری نے ہمت کر کے بادشاہ سلامت سے پوچھا، حضور، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہم نے محسوس کیا ہے ملکہ رانی کے جانے کے بعد آپ بہت اداس رہنے لگے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ ہاں منتری، میں بہت اکیلا پن محسوس کرتا ہوں۔ رانی کے جانے کا غم میں بھلا نہیں پا رہا، کیا کروں؟ حضور، یہ تو قسمت کا لکھا ہے، یہ ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ آپ پر پوری سلطنت کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں منتری، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا ہوگا اب؟ بادشاہ حضور، وقت لگے گا، باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، اس طرح آپ کا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور بیٹیوں کو ماں مل جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ملکہ رانی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور تم یاد رکھو دوبارہ ایسی بات میرے سامنے مت کرنا۔ جی حضور، جو حکم آپ کا۔ بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی بہت سمجھدار تھی۔ وہ کمرے کے باہر کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، یہ تو بالکل صحیح بات ہے، اب پاپا کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔
उसने अपनी सब बहनों को ये बात बताई और सभी राजी हो गई। उन्होंने मिलकर बादशाह सलामत को बहुत मनाया और आखिरकार बादशाह सलामत को अपनी बेटियों की बात माननी पड़ी। अच्छा ठीक है, तुम सबके कहने पर मैं ये बात मान रहा हूँ। मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह बादशाह सलामत ने मंत्री को दरबार में बुलाया और कहा, मंत्री जी, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। सारे राज्यों में पैगाम दिया जाए कि जो भी मेरा और मेरी बेटियों का ख्याल रखेगा मैं उससे शादी करूंगा और उसको बहुत इज्जत दूंगा। जी जी हुजूर, जो हुक्म आपका, हम सारे राज्य में आपका पैगाम पहुंचा देंगे। सिपाहियों ने फिर सारे राज्यों में ऐलान करवाया और जल्द ही बादशाह सलामत की शादी हो गई। बादशाह ने सोचा था कि नई रानी मेरा और मेरी बेटियों का बहुत ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। नई रानी बहुत ही शातिर औरत थी, वो बहुत चालाक थी। उसने आते ही बादशाह को बहकाना शुरू कर दिया। बादशाह सलामत, आपकी 7 बेटियां हैं और आप पर 7 की जिम्मेदारी है और आप इनको बखूबी पूरा कर रहे हैं, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो आपका एहसान नहीं मानती। नहीं नहीं, वो मेरी बेटियां हैं, वो मेरा एहसान क्यों नहीं मानती होंगी? मैं उनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करता हूँ, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी मैंने उनको। वो मेरा एहसान भी मानती हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करती हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आपका एहसान मानती होंगी। आप उनसे एक बार पूछ कर देखें, वो आपका एहसान मानती भी हैं या नहीं, आपको पता चल जाएगा। अरे नहीं, पूछने की क्या जरूरत है, वो मेरा एहसान मानती हैं और मैं अपनी बेटियों से ऐसा कुछ पूछता हुआ अच्छा नहीं लगता। पूछने में क्या ही हर्ज है। चलें, आप उनसे एहसान के बारे में ना पूछें, मगर उनसे ये पूछें कि वो किसका नसीब खाती हैं, और फिर ऐसा पूछने से आपको पता चल ही जाएगा कि वो आपसे कितना प्यार करती हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं ये पूछ कर तुम्हें साबित कर दूंगा कि वो सारी की सारी यही कहेंगी कि बाबा जी, हम आपका ही नसीब खाती हैं, और इस तरह तुम्हें पता चल जाएगा कि वो मुझसे कितना प्यार करती हैं। बादशाह सलामत फिर अपनी 7 बेटियों को पास बुलाता है और इनसे पूछता है। बादशाह सलामत ने अपनी बड़ी बेटी से पूछा, बताओ मेरी बेटी, तुम किसका नसीब खाती हो? अब्बा जान, ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम तो आपका ही नसीब खाते हैं। बारी बारी बादशाह सलामत ने अपनी सब बेटियों से पूछा और आखिरकार जब छोटी बेटी से पूछा तो उसने कहा, अब्बा जान, इस दुनिया में हर इंसान अपना नसीब लेकर आता है, हम किसी का नसीब नहीं खा सकते। हर इंसान अपना नसीब अपने साथ लेकर आता है, इसलिए वो वही खाता है जो खुदा ने उसके नसीब में लिखा होता है। देखा आपने, मैं आपसे क्या कहती थी, आपने मेरी बात नहीं मानी। बादशाह को रानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और ऊपर से रानी बादशाह को और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है। गुस्से में आकर बादशाह ने सब सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, सिपाहियों, मेरी छोटी बेटी बहुत एहसान फरामोश है, उसको पकड़ो और जंगल में छोड़ आओ और किसी ऐसी जगह छोड़ के आना जहां इसको एहसास हो जाए कि ये अपना नसीब खाती है या किसी और का। मलका रानी ये देखकर बहुत खुश होती है। जब सिपाही छोटी रानी को लेकर जा रहे थे तब छोटी रानी बहुत परेशान थी। वो अपने बाप और बहनों से जुदा नहीं होना चाहती थी। तब उसने बादशाह सलामत से कहा, बाबा जान, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। एक दिन मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं ठीक कह रही हूँ। दुनिया में आने वाला हर शख्स अपना नसीब खाता है, कोई किसी का दिया नहीं खा सकता। सिपाही मिलकर छोटी रानी को एक घने जंगल में छोड़ आते हैं। छोटी रानी बहुत डर रही होती है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अब मैं क्या करूंगी? मेरी तो माँ भी नहीं है और ना ही कोई और जो मुझे अपने पास रख ले। मगर कोई बात नहीं, मेरा रब तो मेरे साथ है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। रानी ये सोचते हुए एक दरख्त के साए के नीचे बैठ जाती है, मगर कुछ देर के बाद शाम हो जाती है। इतने में कुदरत का करना ऐसा हुआ, शाम होते ही एक बुजुर्ग का उस रास्ते से गुजर हुआ। वो रानी को देखकर हैरान हो जाता है। अरे बेटा, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लगता है तुम किसी बादशाह की बेटी हो। जी जी, मैं एक बादशाह की बेटी हूँ,
मगर मेरे अब्बा जान ने मुझे महल से निकाल दिया है। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि बादशाह ने आपको महल से ही निकाल दिया? क्या वजह हुई? जी बाबा जी, कुछ साल पहले मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी और हमने अपने बाबा जान की दूसरी शादी करवा दी। ये सब कुछ मेरे बाबा जान ने दूसरी माँ के बहकावे में आकर किया है, वैसे नहीं है। हम 7 बहनें हैं और नई माँ हमसे बिल्कुल खुश नहीं थी। रानी ने सारा का सारा किस्सा कह सुनाया और इस तरह बुजुर्ग को इस पर बहुत ज्यादा तरस आता है और वो छोटी रानी को अपने साथ जाने का कहता है। कोई बात नहीं बेटा, चलो मेरे साथ चलो। मेरा घर इसी जंगल में है और मैं वहाँ अकेला रहता हूँ। आज के बाद तुम मेरी बेटी बनकर रहना। जी जी बाबा जी, आपका बहुत शुक्रिया। और फिर छोटी रानी बुजुर्ग के साथ उसकी झोंपड़ी में चली जाती है। अगली सुबह होती है। बेटा अब उठो, मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ। मुझे कुछ सामान की ज़रूरत है। मैंने ये तुम्हारा खाना रख दिया है, इस खाने को खा लेना। जी बाबा जी, बस आप जल्दी आ जाइएगा, मुझे बहुत डर लगेगा यहाँ। जी जी बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बस तुम झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लेना, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। जी बाबा जी, मैं एहतियात करूंगी। बाबा जी अपना जरूरी सामान लेने शहर की तरफ चले जाते हैं। रानी बहुत उदास होती है और वो झोपड़ी में बैठी अपनी माँ को याद कर रही होती है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो ये मेरे साथ ऐसा कुछ ना होता। बाबा जान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानी अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है। इतने में वहाँ एक सांप आता है और प्याली में रखा हुआ दूध पीने लगता है। रानी सांप को देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा होती है। सांप! ये सांप कहाँ से आया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे डरो मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कोई नुकसान पहुंचाने वाला सांप नहीं हूँ, बल्कि मैं एक बुजुर्ग सांप हूँ और मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। अब मेरे पास 7 हीरों की जिम्मेदारी है जो मैंने एक शहजादी को देने हैं। मैं तो अब शहजादी नहीं हूँ, आप किसी शहजादी के पास जाएं। मेरे बाबा जान ने तो मुझे महल से निकाल दिया है। मैं अब एक आम लड़की की तरह यहाँ जिंदगी गुजारूंगी। हाँ, मैं सब जानता हूँ। इन हीरो की हकदार तुम्हारी माँ थी और अब ये हीरे तुम्हारे हैं। तुम्हारी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही तो तुम्हारी बाकी बहनें इस काबिल नहीं कि उनको ये हीरे दिए जा सके। तो क्या ये हीरे अब मेरे होंगे? ये मेरे पास जो 7 हीरे हैं वो 7 के साथ मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं 7 दिन तक रोजाना आया करूंगा और तुम्हें रोजाना एक हीरा दे के जाया करूंगा। मगर ये हीरे अब मेरे किस काम के हैं? मैं इनका क्या करूंगी? आप जो चाहे इन हीरो से कर सकती हैं, मगर याद रहे इनमें से कोई हीरा गुम नहीं होना चाहिए, वरना इसका नुकसान तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। जी जी, मैं इनकी हिफाजत करूंगी और कोई हीरा गुम नहीं होने दूंगी। सांप जंगल की तरफ वापस चला जाता है और रानी को जाते हुए एक हीरा दे जाता है। फिर रानी ने वो हीरा अपने गले में डाल लिया। शाम हो जाती है और बुजुर्ग अपने काम से वापस लौटता है। बाबा जी, आपको इतनी देर कैसे हो गई? बस बेटा, मैं शहर में बहुत दूर चला गया था, मगर सामान तो कुछ ही मिला है, इसलिए मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। बाबा जी, ये हीरा देखिए। बेटा, ये हीरा तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये हीरा तो बहुत कीमती है, इसका कोई मोल नहीं। मैं इस हीरे के बारे में जानता हूँ। जिसको ये हीरा मिलता है उसकी किस्मत बदल जाती है। ये हीरा तुम्हें बेटा कहाँ से मिला है? बाबा जी, जब आप चले गए थे तो यहाँ अचानक एक बुजुर्ग सांप आया। ये उसने मुझे दिया है। रानी ने सारा का सारा किस्सा बुजुर्ग को बताया। बेटा, इस हीरे के बारे में किसी को मत बताना, वरना ये हीरा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। ये एक राज है जो अब किसी को नहीं पता चलना चाहिए। जी बाबा जी, अब मेरा आपके अलावा और कौन है? मैं किसको बताऊंगी? फिर भी बेटा, इस हीरे का चोरी होने का बहुत खतरा होता है, इसलिए इसकी हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। इस
طرح 7 दिन गुजर जाते हैं। 7 दिन रोजाना सांप आता और रानी को एक हीरा दे जाता। इसी तरह दिन गुजरते गए और सांप ने 7 हीरे रानी को सौंप दिए। बाबा जी, अब मेरे पास 7 हीरे पूरे हो चुके हैं। हाँ बेटा, अब इन हीरों के साथ तुम जो चाहो वो कर सकती हो। ये हीरे तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। तुम जो चाहो वो करवा सकती हो। जी बाबा जी, मैं चाहती हूँ कि हम इस जंगल में एक अच्छा सा महल बनाएं और वहाँ आराम सुकून से रहें। मगर बेटा, इस जंगल में ही क्यों महल बनवाना है? तुम किसी शहर में भी महल बनवा सकती हो। मेरा क्या है, मैं पहले भी इधर रहता था और अब भी इधर ही रहूंगा। नहीं बाबा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आखिरकार आपने ही इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। अब आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। इसी जंगल में हम एक महल बनाएंगे और इसमें आराम सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। देख लो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम चाहो वैसे कर सकती हो। तो फिर जल्द ही रानी का महल बनकर तैयार हो गया। कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन रानी को अपने बाप और बहनों की बहुत ज्यादा याद आती है। बाबा जी, मुझे अपनी बहनों की बहुत याद आ रही है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बेटा, इसमें हर्ज ही क्या है? तुम किसी भी सिपाही के हाथ पैगाम भिजवा दो। जी, मैं ऐसा ही करती हूँ। सिपाहियों से कहकर मैं पैगाम भिजवाती हूँ। रानी सिपाहियों को हुक्म देती है कि फलां बादशाह को हमारे दरबार में आने की दावत दो। सिपाही पैगाम लेकर चले जाते हैं और ये खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। एक जंगल में बहुत ही ज्यादा आलीशान महल तैयार हुआ है। सिपाहियों ने बादशाह सलामत को पैगाम पहुंचा दिया। हुजूर, जंगल में एक महल तैयार हुआ है। वहाँ की रानी ने आपको याद किया है। वो आपके पूरे परिवार को खाने पे बुलाना चाहती है। ठीक है, हमने उस महल के बारे में सुन रखा है। हम जरूर आएंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि जंगल में किसने महल बनवाया है। रानी ने बादशाह सलामत की दावत का बहुत अच्छा इंतजाम किया और तरह तरह के खाने बनवाए। किसी भी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए और सारे महल को सजा दिया जाए। रानी के हुक्म के मुताबिक सारे काम हो जाते हैं और अगले दिन बादशाह, छोटी मलका और रानी की बाकी बहनें सब खाने पर आते हैं। रानी ने उनका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और रानी ने अपने चेहरे पर पर्दा डाल लिया। बादशाह और मलका महल देखकर बहुत हैरान होते हैं और वो सोच रहे थे कि जंगल में ऐसा महल कैसे तैयार हो सकता है। छोटी रानी का महल बादशाह सलामत के महल से बहुत आलीशान था। बाबा जान, ये रानी तो हमसे भी ज्यादा दौलतमंद है, मगर ये अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? इसने अपने चेहरे पर पर्दा क्यों कर रखा है? इतने में रानी एक आलीशान जोड़ा पहनकर उन सबके सामने आती है। सब रानियां उसको देखती रह जाती हैं। आखिरकार बादशाह की बड़ी बेटी ने रानी से पूछा, रानी जी, आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हमें? मैं आप लोगों को अपना चेहरा जरूर दिखाऊंगी। पहले आप लोग मेरे महल की सैर तो करें। रानी सबको फिर महल की सैर करवाती है। बादशाह सलामत और सारी रानियां इतना आलीशान महल देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं। इतने में रानी वही जोड़ा पहनकर आती हैं जिस जोड़े में बादशाह सलामत ने उसको घर से निकाला था। जब छोटी रानी वो जोड़ा पहनकर बादशाह सलामत के सामने आती हैं, तब बादशाह सलामत छोटी रानी को देखते ही पहचान लेते हैं। सब लोग एक दूसरे को हैरानगी से देखते हैं। आप तो मेरी छोटी बेटी हो। ये सब कुछ कैसे हुआ? तुम एक रानी बन गई और क्या किसी राजा ने शादी की है तुमसे? नहीं बाबा जान, मैंने किसी राजा से शादी नहीं की। ये तो मेरा अपना नसीब है जो मुझे आपके महल में भी मिलता था और यहाँ भी मिल रहा है। मुझे यकीन था कि मैं आपको एक दिन जरूर ये साबित करके रहूंगी कि दुनिया में आने वाला हर इंसान अपना नसीब खाता है। हर इंसान के नसीब में जो लिखा होता है वो उसको मिल के रहता है। अगर आपने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी और मुझे महल से निकाल दिया, तब मुझे अपने रब पे यकीन था कि जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिल के रहेगा। आपने मुझे जंगल में छोड़ दिया था, तब एक बाबा जी मिले मुझे। उन्होंने मुझे अपने पास रखा। उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे अपने पास रखा। माफ करना बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मगर आज तुमने साबित कर दिया कि हर इंसान अपना ही नसीब खाता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। नहीं अब्बा जान, आप माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। मैंने सब कुछ भुला दिया। ठीक है बेटा, अगर तुमने सब कुछ भुला दिया तो वापस हमारे साथ महल में चलो और वहाँ जाकर रहो। नहीं अब्बा जान, आप लोग वहाँ खुशी से रहें। मेरा नसीब मुझे मिल चुका है। ये बाबा जान ने मेरा मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया है। मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अच्छा बेटा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम यहाँ रहो या वहाँ। अब मुझे पता चल चुका है कि हर इंसान अपना ही नसीब खाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।